हाँ मंत्री जी नमस्कार, सुनील जी नमस्कार, हमारे सारे गेस्ट नमस्कार। हमारे सारे गेस्ट आई थिंक ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ। नमस्कार, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे। On this occasion, I, on behalf of my home India and Dard Se Hamdard Tak, welcome you all. I welcome our Chief Guest Shri Fagan Singh Kulaste ji, Union Home Minister of State, Ministry of Steel. I welcome our guest of honor Shri Sunil Devdhar ji, National Secretary BJP. I welcome Shri Harish Sethi ji, President My Home India. I welcome Shri Ravindra Lokhande ji, President Dard Se Hamdard Tak. I welcome Shri Prakash Salsinger ji, President Dard Se Hamdard Tak Maharashtra State. I welcome Shri Numal Dusad ji. I welcome Shri Dr. Maoshi Ao ji. I also welcome Shri Manoj Menon ji, Founder Trustee of My Home India. Today I welcome all, and to start with, I would like to invite first of all Shri Dusad ji for National Anthem to begin with the program, and I request all of you to kindly stand for National Anthem. National Anthem शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना उज्जल जलधि तब शुभ नामे जागे तब आशीष मांगे गाए जय गाथा गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय 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 जय। As we know, जल तो तुम्हारा भाई है। जय रविंद्र जी मुझे तो अनम्यूट कर दीजिए। As we know, today is Constitution Day. We celebrate this day because on this day in 1949 our constitution was adopted by Constituent Assembly. However, the same was promulgated after 2 months, that is 26 January 1950, on which we celebrate Republic Day. The original constitution is handwritten, with each page decorated by artists from Shantiniketan, including Nandlal Bose. The constitution has seen a number of amendments since then, but its basic objective and principles remain intact till date. The constitution is the basic document which lays down the framework demarcating fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of governmental institutions of the state, and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of the citizens. It reflects the soul of the nation, and it helps in shaping democracy. There are 3 organs of government: legislature, executive, and judiciary. All 3 are assigned different functions, and one cannot encroach upon each other's functions, and the Supreme Court is guardian of Constitution. In 1973, basic structure formula was given by the Honorable Supreme Court of India in famous case of Keshavananda Bharati, in which it was held that Article 368 gives Parliament unbridled powers to amend even the Constitution, but it cannot amend basic structure of Constitution, such as equality before law, given under Article 14, right to life and personal liberty under Article 21, democratic form of government, separation of powers among 3 organs of government, independence of judiciary, powers of judicial review, etc. And this list was further increased by subsequent judgments. In upholding supremacy of constitution, judicial activism also played a vital role. Recently, Supreme Court abolished system of triple talaq in Shaira Banu case to protect Muslim women's rights, decriminalized 377 IPC in Hafte Johar case. Section 497 in Joseph Shine case was also set aside.
Several aspects are included in right to life and personal liberties, such as right to earn livelihood, right to healthy environment, right to environment in Puttaswamy case, right to privacy, right to practice profession or trade. Till now, 104 amendments have been done in Constitution. In August 2019, Government of India revoked special status of Jammu and Kashmir also by under Article 370 by presidential order. In nutshell, we can safely say that our Constitution is a very dynamic Constitution, which has faced more than 100 amendments since 1950, and many more are yet to come in future. But we have trust that it will never lose its original spirit, that is the rule of public, by the public, for the public. Now, to begin with, I invite Shri Prakash Salsinghi Karji, the President, Dard Se Hamdard Tak, Maharashtra State, for his address. मैं प्रकाश जी जी नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय जी, हमारे आदरणीय श्री सुनील जी रेवदर, एडवोकेट अतुल जी, रवि जी और बाकी सब मान्यवर, आज ये जो संविधान दिन के अवसर पे हमने ये वेबिनार रखा है, उसके बारे में सब मेन जो है ही हम जी को सुनेंगे, सुनील जी को सुनेंगे। जो हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमको कुछ बताया है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले ये सामने कि हर आदमी को समान सब चीजें मिलनी चाहिए, ये बेसिकली उसमें कहा गया है। जैसे कि दर से हमदर्द तक का जो संस्था का काम है, जो जेल जो लोग रहते हैं, जिनको जेल में किसी एक्सीडेंटली जाने की वजह से या किसी गलती होने की वजह से या फिर किसी ने झूठा फंसाने की वजह से जेल में जाना पड़ता है, तो उन लोगों को अपने परिवारजनों के द्वारा या अपने दोस्तों के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा उनको अपनाया नहीं जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है और इसके वजह से उनको कई सारी समस्याओं से उनको लड़ना पड़ता है। और उसके बाद अंदर जेल के अंदर भी जो कुछ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, अच्छा खाना तो दो, लेकिन कई बार तो उनको सोने के लिए जगह भी वहां नसीब नहीं होती है और कई जेल में तो हर चीज के अलग अलग रेट फिक्स है। तो ये सब रीजंस की वजह से वो लोग पूरे अंदर से टूट जाते हैं। और जैसे लेटर ऑफ स्पिरिट्स के बारे में हम सोचे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो लेटर में जो लिखा है वो जब तक कोई आदमी अंदर से मजबूत नहीं है, अंदर से जो कमजोर है, वो आदमी अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सोच नहीं सकता है। इसीलिए जो अंदर की जेल के अंदर के जो लोग हैं, उनको बाहर के लोगों से जोड़ने का एक ब्रिज का काम सुनील जी की प्रेरणा से दर से हमदर्द तक की जो हमारी संस्था है, ये काम संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। तो वो लोगों को अपने मन में एक आत्मविश्वास उनके बीच जागरूक करना, उनको कई बार पैसे ना होने की वजह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार पैसे होके भी उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। कई जेल के जो इनमेट्स होते हैं, उनको कई बार पुलिस द्वारा या किसी लॉयर द्वारा या किसी और व्यक्ति द्वारा कई फंसा जाता है और उस वजह से वो अंदर से टूट जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनको जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उनका समझ पाना वो मुश्किल हो जाता है और इसका फायदा कई लोग लेते हैं, उनकी श्रद्धाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। तो जो ये संस्था के द्वारा हमने काम शुरू किया है, दर से हम लोगों को तो एक अच्छा नागरिक के तौर पे उनका आत्मविश्वास हो, इसके लिए जो जो कुछ करना पड़े, जो लोगों को झूठा फंसाया गया है, इतना ही कहना था। हम मेन स्पीकर तो हमारे हैं
जिनको हम सुनने के लिए तैयार हुए हैं। जी धन्यवाद। अभिषेक जी। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी के बाद मैं आज के दूसरे स्पीकर डॉक्टर माओशी आओ जी से निवेदन करूंगा। माओशी जी प्लीज अपना आपको अनम्यूट करें। Thank you so much. Yes, please. Respected Sir Fakan Singh Kolastichi, the Honorable Minister of State for the Ministry of Steel. Respected Shri Sunil Deotharji, the National Secretary, PGP. Respected Dr. Harish Shetty, the President, My Home India. Respected Shri Manoj Menonji, the Founder, Trustee of the My Home India. Dr. Abhishek Atriji, Advocate Prakash Salsingji Karji, and my beloved dear brother, Advocate Ravi Lokhandiji. Thank you so much to the organizers for giving me this opportunity to be on this auspicious occasion on this August gathering. The drafting of our constitution took around 2 years, 11 months, and 17 days, yet the nations of the world, across the world, admires our constitution. And the scholars across the world has been researching in our constitution until today, and it will go on infinitely. It is a constitution, even though drafted by human minds, but it is organic and natural. Thus, it is not a stagnant document, but its growth is never-ending and infinite. It is a document that pragmatically takes stock of the vast socio-economic problems of the nation and improves the lot of the commandment consistent with its dignity and the unity of the nation. Each provision of the Constitution is a living, organic institution and therefore cannot be compared with any other document. It is an organic document that liberated the people and abolished untouchability and enshrined fundamental and constitutional protection to the weaker sections of the society. It is a constitution that protects the fundamental rights and the natural rights of every citizen, which is the soul of the constitution. It is a constitution where writ is a fundamental right of every citizen, and judicial review shields every citizen from arbitrary actions of state organs and its instrumentalities. It is a constitution that does not treat the states as agents, but share the sovereignty together. On this day, we remember the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, and the members of the Constituent Assembly who have given to us this constitution that has unified the nation, giving the dignity of every citizen from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. The minorities, advisory committees on minorities had a subcommittee which was known as the Bordoli Committee. And I am referring today to this Bordoli Committee and the advisory committee because I, being from the northeastern part of the states, would like to share some of the events in the Constituent Assembly, the drafting of the sixth schedule to the Constitution of India, and I will request your permission to share the same. So the Bordoli committees reported to the drafting committee, the advisory committee, with lots of demands, including management of resources with revenue, financial independence, management of the local affairs, removal of the CRPC, etc. All those were accepted without any objection by the advisory committee, except the added two provisions in the draft sixth schedule. That is the jurisdiction of the High Court of Assam
in case if the district council does anything which is outside the jurisdiction, and also the exclusion of the plain areas from Part B of the draft 6th schedule to the Constitution of India. This draft was later on debated in the Constitutional Assembly on 5th, 6th, and 7th of September 1949. There were numerous opposition from various members of the Constituent Assembly that not to give this autonomy to the northeastern states. I would like to highlight some of the opposition which were being put in the Constituent Assembly. Shri Goladhar Chalia was of the opinion that the northeastern people are democratic, but they are democratic in the way of taking revenge. They are democratic that they will chop off your heads. Similarly, Shri Brijwaswar Prasad said, opposing to the district councils and the regional councils, that it will lead to the establishment of another Pakistan in our nation. He was of the view that it will jeopardize the interests of India at the altar of the tribals. According to him, it will lead to the bisection of India. However, it was Dr. Bhimrao Ambedkar, the father of our constitution, who rebutted those rival contentions and tried to bring harmony in the Constituent Assembly because he loved the tribal people of India and he was aware and he know the tribal people of the northeastern states of India. So Ambedkar ji, replying and rebutting to such opposition, said that the positions of the tribals in the Assam are on a different footing with regard to the tribals found in the other parts of India. To him, the tribals of the northeastern states, their roots are still in their own civilization and in their own culture. Their laws of inheritance, their laws of marriage, customs are quite different from that of the other Hindus that surrounds the tribals region. Ambedkar ji therefore said that the position of the tribals are somewhat analogous to the position of the Red Indians in the United States of America. And therefore he brings a solution in the Constituent Assembly which melted down all the opposition. He said that there are reservations and boundaries in the United States. And that is what exactly in India we should also adopt. And therefore, he said that in United States, the Red Indians may enjoy or may be regulated by a different law, but no matter what, they are citizens of the United States of India, the United States of America. And therefore, he suggested that no matter what, the northeastern states, they may have an autonomy, they may have a regional council, they may have a district council, but they are citizens of India and the Constitution of India is the supreme. As our esteemed Salshingarji has pointed out, the Constitution is the supreme. The provisions, special provisions given to the northeastern states, the 6th schedule, and various other provisions found under Article 371 can be done away by the Parliament anytime if the Parliament so wishes. It was during this Constituent Assembly, the love and affection which Ambedkar has towards the people of the northeastern states has been clearly portrayed because of his firm and positively stubborn conviction and his vision of an inclusive India through democratic socialism and upliftment of the weaker sections of the society,
which we today enjoy in the form of social justice in our Constitution. Thus, despite various oppositions and objections to dilute the debates of the sixth schedule to the Constitution of India, the members, with the convincing power of Ambedkar, finally adopted Article 244, read with fifth and the sixth schedule to the Constitution of India, and the northeastern states therefore enjoy the sixth schedule to the Constitution of India, which no other sister states enjoys. I would like to conclude that if yesterday is not to paralyze today, the Constitution of India is the answer to all the problems, whether it be political or social. Therefore, the fundamental rights, the fundamental duties, the judicial independence, and the flexibility of the Constitution of India must be protected and abided by all of us. Thank you so much. Jai Hind and Thank you very much, Toshi-ji. thank you so much. Thank you. Now I would like to invite our today's chief guest, the Honorable Minister, Mr. Fagan Singh Kulaste-ji. मेरी आवाज आ रही रवि जी? आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेषकर इस वेबिनार में हमारे राष्ट्रीय मंत्री सुनीलधर जी, रवि जी और सभी पार्टिसिपेंट मित्रों, आज का ही दिन हमारा जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को, और इसको हमने कार्य किया। मित्रों, भारत का संविधान बनने के बाद हमारे देश के नागरिकों के लिए, नागरिकों के कर्तव्य के लिए, उसके अधिकार के लिए, और भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, हम सबके लिए, और इसे संविधान का पालन करना। और इसलिए संविधान में इसकी व्याख्या की गई है कि जो लोग रह रहे हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी जाति समाज के लोग हों, किसी समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हों, परंतु जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को लोग जाने और उसका पालन हम सबको करना। हमारी लोकतंत्र की विशेषता यही है भारत के संविधान में कि हम उसका पालन कितना कर रहे हैं, ये है महत्व का जो। और इसलिए हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन नियमों का हम पालन करें, आदर करें। जिन संस्थाओं के अंदर हम जहां काम करते हैं, हमारी राष्ट्रीय प्रतीक के, चाहे राष्ट्रीय झंडे हो, राष्ट्रीय गान का है, और ऐसे आदर्श संविधान के आदर्श उन संस्थाओं का जो आज नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं इस भारत ने, भारत के लोगों ने, ऐसे अनेक लोग। यही हमारी कर्तव्य परायणता का, हमारी सहिष्णुता का, हमारी इस आदर्श का। और जब से ये संविधान बना और संविधान सभा में जितने भी डिबेट हुए, अगर आप उनको देखेंगे तो आजादी के पूर्व की जो स्थिति थी, जिस समय से इस संविधान सभा के गठन के भाषणों को देखा है, परंतु जिस समय ये भारत का संविधान बना, बाबा साहब ने इस संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए एक विधि वेदता होने के कारण
जितना उनने इसे संविधान में उल्लेख किया है, ये हमारे भारत के लिए और दुनिया के लिए एक ऐसा आदर्श संविधान बन गया जिसका पालन भारत के सब नागरिकों को करना। और अलग अलग इस प्रकार की इसकी व्याख्या हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक समरसता का विषय है, हमारे सामाजिक संस्कृति का है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं। और इससे भारत है कि सभी लोगों में समरसता, समानता, प्रभुत्व की भावना का निर्माण, ऐसे अनेक क्षेत्रों में और देश की रक्षा करना, उसकी परंपरा को बनाए रखना। चाहे कितने हमारे देश के आंदोलनकारी रहे हों, स्वतंत्रता के इस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम प्रेषित करने वाले उच्च आदर्शों की अगर हम बात करेंगे, तो मैं जैसे ऐसे सजे हुए हमारे जो कानून है और उन कानूनों का पालन करना, यही हमारी एक आदर्श है और हमारी देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखने का एक जो संदेश देश के नागरिकों का जो कर्तव्य है और देश की एकता के जो सूत्र है, हम उनमें बंद करके कैसे आगे बढ़े, इस देश को आगे बढ़ाएं, ये इससे हमको प्रेरणा मिलती है। और इसलिए हमने देश के इस संविधान का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, और उनके अधिकारों के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में। और हमारे यहाँ जितने भी इस प्रकार के अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं, हम उनको और कैसे बेहतरी के लिए कर सकते हैं, इसमें समय समय में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, परंतु उससे जो मूल संविधान की जो व्यवस्था है, जो भावना है, वो इस भारत के हमारे संपूर्ण आज जो हमारी जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को मूर्त रूप दिया है। हम इसको जानना चाहिए भारतवासियों को। अनेक अनेक क्षेत्रों में हम काम करते हैं, अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण जितना भी अच्छा हो सकता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद भारत के जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनके बारे में जो मूल हमारे जो कर्तव्य, और इसलिए हमने इस लोकतंत्र को स्वीकार किया। भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की जो व्यवस्था हुई, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उस संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे, इन सब चीजों का अलग अलग तरीके से अलग अलग भावनाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया, अलग अलग उसकी व्याख्या हुई, परंतु जो मूल मंत्र है उसको समझने की जरूरत है। और इसलिए प्रजातंत्र जनता का शासन होता है। जो भी व्यक्ति उस व्यवस्था में है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के प्रति, चाहे वो राज्यों का विषय हो चाहे केंद्र का हो, और इसलिए जो भी हमारे उस व्यवस्था में शामिल हुए हैं, हम सभी को उस कानून का पालन करना। और इसलिए जितने भी इस प्रकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी है, तो मुझे लगता है कि जो हम अनुभव कर रहे हैं कि उस समय संविधान लागू होने के बाद इस पूरे भारत का जो परिदृश्य, और आज हम जब बात करते हैं हमारे
देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो वो जो कल्पना उस समय हुई और आज इसको हम किस रूप में देखते हैं, और इसलिए ये विषय कई बार आया है कि इस भारत के, इस नए भारत की कल्पना, कि हम उसको और इस देश की आजादी के लिए जो संघर्ष हुए, संघर्ष किए गए, उस समय की जो परिस्थिति है और आज हम इन वर्षों में आने के बाद हमारी क्या परिस्थिति इस भारत की है, हमने कितना इसे देश के उन अलग अलग हिस्सों में जो रहने वाले अलग अलग लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, हमको बाकी व्यवस्थाएं मिली, परंतु हम कहां पर खड़े हैं ये भी हमारे संज्ञान में होना चाहिए। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, चूंकि हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, हम हमारे संविधान पे विश्वास करते हैं, वो हम आदर्श कैसे इस संविधान को मान करके समाज में जो काम हम करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो आज अनुभव हम कर सकते हैं कि आज जिस दिशा में जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो आज के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए आवश्यकता है, शायद ये कल्पना कभी किसी ने किया। अगर महात्मा गांधी की भावना को आप देखें, संविधान के अंदर जिनका उल्लेख किया गया है, छोटे बड़े समाज का, गरीब कुचला हुआ इंसान, और ये सब उसके अंदर उसका उल्लेख किया है, परंतु मूर्त रूप देने का काम, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको हम कहते हैं, जो इस देश के नागरिकों का अधिकार है, उसको वहां तक पहुंचाने का ये जो संकल्प है, मुझे अनुभव में आता है कि इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प अगर पूरे देश भर में देखें तो ये अनुभव आता है कि अगर इसको आत्मचिंतन करें, भारत की जो मूल भावना है, भारत के संविधान है, और इसीलिए हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हम शपथ लेते हैं इसी बात का, तो ये एहसास दिलाता है कि हम देश में रहने वाले किसी भी मूल के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के लोग हों, सबके प्रति जो आदर का जो भाव, सबके प्रति जो स्नेह, सबको साथ लेकर के चलना, सबके प्रति न्याय करना, ये हमारा एक धर्म है। और इसलिए आज इस दिशा में अगर कोई प्रयास हुए हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, और जैसा हम मानते हैं कि आने वाले समय में जब इस देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, तो ये जो कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस समय हम अनुभव करेंगे कि हम इन 75 वर्षों में आजादी के बाद कहां पर खड़े हैं। ये अपने आप को सोचने का, समझने का, देखने का हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको भी अनुभव आएगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनने नेतृत्व किया है इस देश का, संविधान के जिनने संकल्पना ली है, परंतु मूल स्वरूप को अगर देखेंगे तो ये जो इस समय कदम उठाए गए हैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, तो ये हमारे यही देशवासियों के लिए जो कर्तव्य है देश के नागरिकों का, उस मूल भावना को, उस धारणा को अगर चरितार्थ करने में उसकी एक आत्मविश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि अगर इसके बाद हम इस दिशा में सोचे होते तो आज भारत के लोग, भारत के नागरिक और अपनी ताकत से खड़े हो सकते हैं। परंतु चलिए जो भी है, परंतु मैं आज के अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के दिन हमारा भारत का संविधान बना, दबे कुचले लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े लोगों को, जो इसके अंदर जो प्रावधान किए गए, बाबा साहब के बारे में किसने कल्पना नहीं किया था। एक विधि वैधता के कारण उस समय ये व्यवस्था बनी और उनको इससे विधानसभा के
चेयरमैन के नाते जो उनने अपने विद्या अध्ययन के दौरान जो अनुभव उन्हें किया होगा, शायद उसको दुनिया में और बाहर उन्हें विदेशों में पढ़ने के बाद वहां की परिस्थितियों को, भारत की परिस्थितियों को समझने के बाद संविधान के अंदर कुछ प्रावधान बाद में उसको वो इस देश के देशवासियों के लिए और जो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनका अधिकार समाज की मुख्य धारा से एक जैसी व्यवस्था इस भारत के अंदर, भारत में रहने वाले नागरिक चाहे छोटे हों बड़े हों, चाहे किसी समुदाय के हों, उनकी जो आर्थिक क्षमता है, सक्षमता है, पीछे जो लोग हैं उनको साथ लेकर के चलने की ये जो भावना इसके अंदर व्यक्त की गई है। और इसलिए मैं चाहता हूं और आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की जो मूल भावना है, कल्पना है हमारे संविधान की, हम उस आदर्श को, उस संविधान को अपने आप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और जो मूल भावना हमारी लोकतंत्र की है उसका आदर्श का पालन करें, ऐसा मुझे लगता है। और यही हमारी इस जीवन का, जीवन पद्धति का एक बहुत बड़ा आधार हमारे भारत के संविधान के अंदर दिया है। और इसलिए बाबा साहब ने इन सारी चीजों का प्रावधान इसके अंदर किया है कि जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके रहने का, उनके सोचने का, उनके समझने का, उनके अधिकार हैं, मूलभूत सुविधाओं के बारे में सारी चीजों का उल्लेख किया है। और मुझे लगता है कि अगर इसको हम आदर्श मान करके इस संविधान को, हमारी जो कल्पना है, और इसलिए हर भारतवासी को इस आदर्श की कल्पना को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम इस पूरे समाज को, इस राष्ट्र को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यही परिकल्पना इस संविधान के अंदर की गई है। मैं आप सबको इस संविधान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद फगन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत सुंदर से वर्णन किया। अब मैं आदर के साथ आमंत्रित करूंगा अपने आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुनील देवधर जी, चेयरमैन माई होम इंडिया एंड नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। सुनील जी, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करके। सुनील जी प्लीज। जी, सम्माननीय केंद्रीय मंत्री और मेरे मित्र बड़े भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, इस कार्यक्रम की सूत्र संचालना करने वाले डॉक्टर अभिषेक अत्रेय जी, इस कार्यक्रम की कल्पना का जिन्होंने कल्पना की, इसको कंसीव किया, इसको प्रैक्टिकल में लाया, ऐसे मेरे मित्र, और इस दर्द से हमदर्द तक इस ट्रस्ट के ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री एडवोकेट रविंद्र लोखंडे जी। और जैसे कि अभी अभिषेक जी आपने मुझे कुछ माई होम इंडिया का कहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अभी लगभग 1 वर्ष हो गया है मैं माई होम इंडिया का ट्रस्टी नहीं रहा हूँ। मैंने रिज़ाइन किया है क्योंकि मैं फुल टाइम राजनीति में हूँ, और इसलिए, और एक माई होम इंडिया एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाते ग्रो हो रही है और भी आगे ग्रो होगी। इसलिए इसको एक गैर राजनीतिक रूप कायम रहे, इसलिए मैंने इसको कुछ दिन पहले त्याग दिया है। लेकिन इसको इसके मदद करना या इसके साथ खड़े रहने को मैंने बिल्कुल नहीं त्यागा है। ऐसे हमारे इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं, और मुझे आज अभिमान है कि बहुत सुंदर भाषण तोशी आओ जी ने इसमें रखा, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की किस तरह से, नॉर्थ ईस्ट के जनजातियों को इस संविधान के कारण ताकत प्राप्त हुई है, ये आज आओ तोशी जी के एक छोटे से भाषण में हम सब लोगों को समझ में आया। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मैं इन सब लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत अगर आपको बतानी है तो हमारे सामने गोंडवाना रीजन का, मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़े रीजन का, एक जिसको अंग्रेजों ने आदिवासी कहा, ट्राइबल कहा,
हम उनको जनजातीय कहेंगे, ऐसे गरीब घर का गरीब युवा शायद उनके आयु के 28वें वर्ष में पहली बार विधायक बना, ये केवल भारतीय संविधान के कारण बना। इसलिए फग्गन सिंह कुलस्ते जी आपको बहुत बहुत बधाई है। और न कि केवल कुलस्ते जी कई बार विधायक रहे, उसके बाद में राज्य में भी मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, फिर केंद्रीय मंत्री रहे, पहले बार भी मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में थे, मोदी जी की सरकार में भी 2 बार मंत्री बने हुए हैं। तो ये जो एक ताकत है हमारे भारतीय संविधान की, कि इस देश में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों को स्थान मिलना शुरू हो गया। ये देश जो सालों से एक तो महान लोगों का देश जरूर था, लेकिन इस महान देश में कई सारी गलतियां हुई, हमारे पुरखों के गलत व्यवहार के कारण गलतियां हुई, जिसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। और उन गलतियों के कारण हमारे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपनी पत्नी को पढ़ाना पड़ा। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं ने केवल घर में रहना है और घर में केवल खाना पकाना है, बच्चों को संभालना है, इतना ही महिलाओं का काम है। ये गलत धारणा आ गई थी, ये सत्य नहीं है। हमारे देश में गार्गी थी, मैत्रेयी थी, प्रचंड जो बुद्धिमान महिलाएं इस देश में होकर गई है। हमारे देश में वीरांगनाएं होकर गई है, देवी अहिल्या होकर गई है, झांसी की रानी होकर गई है, चेन्नम्मा हो गई है, रुद्रमांबा हो गई है। लेकिन बीच में एक ऐसा कालखंड आया, उस कालखंड में महिलाओं को सीमित रखा गया, खास करके जब हमारे देश के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण करके जिस तरह से वो महिलाओं को पर्दे के अंदर रखा करते थे, वैसे हिंदुओं ने भी अपनी महिलाओं को पर्दे के अंदर रखना, उनको पिछड़ा बना के रख देना, ये गलत प्रैक्टिसेस चालू की। और फिर वो हिंदुओं में बहुत बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस में आई। तब महात्मा ज्योतिबा फुले जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। और जो तथाकथित उच्च वर्णीय समाज है, उस उच्च वर्णीय समाज की महिलाओं को पढ़ाने वाला पहला स्कूल ये पिछड़े हुए या जिसको बैकवर्ड क्लास कहेंगे, ऐसे समाज से आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने स्कूल चालू की, जिसमें उस समय के सवर्ण महिलाओं ने भी आकर पढ़ना शुरू किया। तो ये सारी चीजें हमारे देश में होती थी, हम लोग जानते हैं। और हम लोगों को आज अभिमान हमारे संविधान पर होना चाहिए कि उसी संविधान के कारण हमारे देश में प्रधानमंत्री भी जो है महिला बनती है। हमारे देश के अंदर कई मुख्यमंत्री आज महिलाएं बनी है। हमारे देश के संसद की जो लोकसभा की जो अध्यक्षा है, 2 बार कम से कम मेरे जानकारी में महिलाएं, उसमें से एक बार दलित महिला भी एक लोकसभा अध्यक्ष बनी हुई है। उसी तरह से भारत की राष्ट्रपति भी महिला बनी हुई है। और अगर हम लोग मोदी जी का ही मंत्रिमंडल देखें तो वैसे तो हमारे संस्कृति में ब्रह्मा जी का अगर आप मंत्रिमंडल देखते हैं, ब्रह्मदेव भगवान का मंत्रिमंडल, तो आप देखेंगे कि उसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो लक्ष्मी देवी के पास है, लक्ष्मी माता के पास है। HRD शिक्षा मंत्रालय देखेंगे तो वो सरस्वती माता के पास है, और डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दुर्गा माता के पास है। तो ब्रह्मदेव ने भी संदेश दिया था कि महिलाएं कोई कमजोर नहीं है, और हमारे भारत ने महिलाओं को उस दर्जे का एक दर्जा दिया, उस दर्जे पे लाके रखा कि आज देश में स्वाभिमान के साथ हमारी महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश के विकास में आगे बढ़ रही है, अलग अलग पदों को वो आभूषित कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हमारे सेना के तीनों दलों में आज महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर, पनडुब्बियां चलाने से लेकर, वॉर फ्रंट पर आगे जाने से लेकर, महिलाएं उस क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे ओलंपिक में जाकर मेडल्स पाने की बात हो, हमारे पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं तो सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आती है। हमारे भारत के लिए असली सोना लेकर आने वाली महिलाएं अगर कोई है तो हमारी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं हैं, चाहे वो दीपा कर्मकार हो, चाहे MC मेरी कॉम हो, और बहुत सारी। तो मेरे साथियों, ये संविधान ने जो हमें भारत में एक अधिकार दिया, जिसमें एकता का अधिकार हमें दिया है, और हमें गणतंत्र दिया है, लोकतंत्र दिया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और संविधान दिवस पर हमने
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को याद करना ही चाहिए। इसका कारण है कि एक बच्चा, a small child was denied to go to the blackboard of the school and write down the sum asked by the mathematics teacher, just because behind that blackboard the tiffins of upper class students were kept, and they shouted that if this child goes and writes on the blackboard, then the behind kept all our tiffins will be contaminated. हमारे जो टिफिन रखे हुए हैं वो खाने के योग्य नहीं रहेंगे कि ये बच्चा अगर फलक पर कुछ लिखेगा जाकर। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने पढ़ाई की, जिसको पानी नकारा गया, जिसको पानी नहीं पिलाया गया, जब पता चला कि वो दलित परिवार से है, बैरिस्टर बनकर आने के बाद उनका प्यून भी तथाकथित उच्च वर्णीय था, उनके हाथ में फाइल नहीं देता था, उनके ऊपर फाइल फेंक देता था, क्योंकि स्पर्श अगर होगा तो फिर उसको वो अछूत बन जाएगा या उसको समाज से बाहर निष्कासित किया जाएगा। ऐसी गलत धारणाओं में, दुष्ट धारणाओं में जब हमारा समाज था, उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सरस्वती की उपासना की, उन्होंने शिक्षा ली, he got educated, and if you have seen any statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar ji in our country, then there is a book in his hand. I have not seen any statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar ji in which he is not holding one book. You should not misunderstand that book is Indian Constitution. That is a book. He was a book lover. और वो सरस्वती का ऐसा महान पुजारी था कि पुस्तक पढ़ना ये उनका सबसे बड़ा पैशन था, ज्ञान अर्जन करना उनका बहुत बड़ा पैशन था। आपकी जानकारी में होना चाहिए, when he was becoming barrister, and at that time he was fond of books, and he used to go to market and purchase books, but he didn't have money at that time. So what he used to do was he used to go on fast for a week's time. 7 दिन कुछ खाएंगे नहीं, और वो खाने का जो पैसा बचेगा उस पैसे से वो पुस्तकें खरीदते थे और वो पुस्तकें पढ़ते थे। इतना सारा दुनिया का मटेरियल लॉ पढ़ने के बाद, अलग अलग प्रकार का ज्ञान लेने के बाद, वही एक योग्य व्यक्ति थे जो भारत का संविधान बना सकते थे। और इसलिए भारत का संविधान बनाने में जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की तपश्चर्या है, उस तपश्चर्या के पीछे, पढ़ाई करने के पीछे बहुत बड़ी तपश्चर्या है। ये कोई उच्च वर्णीय समाज से, अमीर घर से पढ़ाई करके आया हुआ व्यक्ति नहीं है। ये गरीब उपेक्षित परिवार से आकर संघर्ष करके, पढ़ाई करके, प्रचंड पढ़ाई करके, ज्ञान अर्जित करके, वो ज्ञान अपने समाज के लिए, सिर्फ अपने समाज के मतलब दलित समाज के लिए नहीं, दलित समाज के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की, लेकिन उन्होंने संविधान सारे देश के लिए दिया। ये संविधान ही है जिसके कारण हमें एक गरीब घर का बच्चा जो चाय बेचने वाले का बेटा है, वो आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन सका है। ये संविधान ही है जिस संविधान के कारण इस देश के अंदर कई बार मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। एक साइंटिस्ट जो सरस्वती का उपासक था, एपीजे अब्दुल कलाम, इस देश का राष्ट्रपति बना हुआ है। यह संविधान ही है जिस संविधान के कारण आज के जो राष्ट्रपति है, जो दलित परिवार से आते हैं, गरीब दलित परिवार से आते हैं, वो आज राष्ट्रपति बने हुए हैं। और मजाक में एक बार मैंने कहीं कहा हुआ सुना कि जब वो गरीब थे, रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, तब उनके घर में इतने छत को छेद थे और उन छेदों से पानी गिरता था, तो 356 से ज्यादा छेद उनके घर में छत में थे। और आज वो ऐसे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जिसमें 350 से ज्यादा कमरे हैं। ये भारत के संविधान की ब्यूटी है, ये भारत के संविधान की महानता है। और ऐसी कई बातें साथियों में बता सकता हूं आपको जो चमत्कारिक बातें हैं, लेकिन हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि यही संविधान है जिस संविधान को कई बार इस देश के अंदर खतरे भी निर्माण हुए। सबसे बड़ा खतरा निर्माण हो गया जब एक परिवार को ऐसे लगने लगा कि बस ये
सारा देश हमारे फोरफादर्स की प्रॉपर्टी है और हमारे अलावा कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। हम लोग कानून से ऊपर है। और इसी प्रकार का विचार जब इंदिरा गांधी के मन में आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था, कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी कि प्रधानमंत्री को बताया कि आपने गलत किया है और आपका चुनाव हम रद्द करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस देश के संविधान को खतरे में डालकर, उसको बांध के बाजू में रखकर एक इमरजेंसी का दौर इस देश में देखा है, जो आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने करके पूरे संविधान की जो है अपने पैरों तले रौंदने का, कुचलने का काम किया है। इसको भी हमने भूलना नहीं चाहिए। ये संविधान खतरे में पड़ा हुआ है पास्ट में, और उस संविधान की रक्षा करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी से लेकर कई सारे लोगों ने संघर्ष किया है, और संघर्ष करके, सत्ता परिवर्तन करके, ये गणतंत्र के मार्ग से, लोकतंत्र के मार्ग से ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, इनका पराभव करके इस देश की जनता ने दिखाया है। यही वो संविधान है जो लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर को। एक पापी और दुष्ट वहां का जो शेख अब्दुल्ला था, जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग रखना चाहता था, उसके घुटने के सामने बैठकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने उसके चक्कर में आकर, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो आर्टिकल 370 और 35A की जो धारा बनाई थी, जिसके कारण इस देश के संसद में जो भी कानून बनता था वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, ये सभी वंचित रहते थे हर उस निर्णय से जो केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो या और कोई सरकार रही हो, जो डिसीजंस लेते थे, जो लॉ पास होता था, वो लॉ वहां जम्मू कश्मीर में वहां लागू नहीं होता था। हमारे देश का झंडा वहां पर नहीं लहराता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध करके बलिदान दिया। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और चूंकि वहां पर संविधान लागू नहीं होता था, पाकिस्तान ने उसका बार बार लाभ उठाया और जम्मू कश्मीर में अशांतता, आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान ने किया। वहां के मुसलमान लोगों को भड़काया और वहां के हिंदू कश्मीर पंडितों को बाहर निकालने का पाप इस देश में हुआ। लगभग 50,000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान दिया उस जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने के लिए। देश धन्यवाद देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश धन्यवाद देता है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि जिन्होंने ये धारा 370 और 35A को निरस्त करके जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण भारत के साथ करके वास्तविक में एक देश एक संविधान करने का काम स्वाधीनता के 72 वर्ष बाद, आफ्टर 72 years of independence, one nation, one constitution was implemented by Honorable Narendra Modi ji and Amit Shah ji। मेरे साथियों, ये संविधान ने, पहले संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उस समय के पूर्व पाकिस्तान में जो सिख बंधु है, जो हिंदू बंधु है, जो पारसी है, जो ईसाई है, जो बुद्धिस्ट है, जो जैनी है, उन लोगों को कभी भी रिलीजियस उनके ऊपर अटैक होने के कारण, उनके प्रताड़ना होने के कारण अगर उन्हें भारत में आना है तो भारत में उनको नागरिकता देना उनका अधिकार है। इस देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया था। कराची में रहने वाले लोगों ने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष इसलिए नहीं किया कि वहां पर पाकिस्तान बने। वो रात को भारत में सोए, सुबह उठे तब पाकिस्तान बना था। ये अन्याय उनके साथ हुआ था। और जैसे पाकिस्तान बन गया, उसने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। अफगानिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। बांग्लादेश जो हमने बनवाया, हमने उनको अभय दिया, हमने उनको दुष्ट वेस्ट पाकिस्तान के गुंडा सेना से हमने मुक्त कराया। उस बांग्लादेश ने निर्मित के इमीडिएटली अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। उन्होंने भी अपने आप को सेक्युलर रिपब्लिक नहीं कहा। ऐसे 3 इस्लामिक रिपब्लिकों ने जब घेर के रखा था, वहां के हिंदुओं के ऊपर अनन्वित अत्याचार हुए, उनको यहां आना पड़ा और एक कानूनन उनका हक बनता था कि इस देश के अंदर उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। ये हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की ब्यूटी है, सुंदरता है कि हमारे पार्लियामेंट ने
उन लोगों को भी अभय दिया। फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को हमने धन्यवाद देने चाहिए कि उन्होंने ये सीएए का कानून लाकर इन सभी दुखित, पीड़ित और वंचित और प्रताड़ित लोगों को भारत में नागरिकता दी है। इस देश के अंदर नक्सली मूवमेंट है, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, अपनी मांगों को जब वो संवैधानिक रूप से पूरा नहीं कर सकते तब संविधान की धज्जियां उड़ाकर, हाथ में बंदूकें उठाकर, चाहे नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी हो, चाहे पूरे देश में फैले हुए नक्सली हो या अर्बन नक्सली हो, जो शहरों में रहते हैं, प्राध्यापक बनकर घूमते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर घूमते हैं, पत्रकार बनकर घूमते हैं, लेकिन सारे असंवैधानिक काम करने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों के रहते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन केवल न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके, संविधान के ऊपर विश्वास रख के एक आंदोलन पूरा किया गया और वो पूर्णत्व तक लेकर गए, वो राम मंदिर का आंदोलन है। 73 years of independence, राम मंदिर, the problem of Ram Mandir or case of Ram Mandir was pending before court. जनता में हमने आंदोलन किया, पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया। मैं भी इस आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूं, मैं भी कार सेवा करने के लिए गया था, लेकिन हमने कानून अपने हाथ में नहीं लिया था। और मेरे साथियों, राम मंदिर का आंदोलन ये कानूनी लड़ाई से भारत का नागरिक जीता है और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का काम ये प्रारंभ हो गया है। हमने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को धन्यवाद देने चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया को एक्सपीडाइट करने के लिए, तेज करने के लिए, जल्दी रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। अशोक जी सिंघल है और अडवाणी जी है और कई सारे लोग हैं, महात्मा है, जिन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं, लेकिन ये गए 2 वर्षों के अंदर इस कानूनी प्रक्रिया को, जबकि कपिल सिब्बल जैसे दुष्ट अड़ंगा डाल रहे थे, बोल रहे थे कि इसका निर्णय ही नहीं आए। तो संविधान की ब्यूटी है कि हमें राम मंदिर मिला है और इसलिए हम लोगों को इस संविधान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और इस संविधान में कई सारी नई चीजें जोड़ने की भी आवश्यकता है। और मैं योगी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब बहुत भयंकर बातें लव जिहाद जैसी जब हमारे सामने आने लगी और अपना धर्म छुपाना, झूठा धर्म बताकर, झूठा पंथ बताकर किसी लड़की को, हिंदू लड़की को बरगलाना, उससे विवाह करना और विवाह करने के बाद मजबूर होने के बाद उसके सामने जाहिर करना कि मैं मुसलमान हूं और उसके बाद में उसके साथ सब प्रकार के अन्याय करना, उसकी हत्या करना, उसको वेश्या प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्त करना, इन सारी चीजों की बहुत बड़ी संख्या में इस देश में ये हो रहा था, आज भी हो रहा है। और इसको कानूनन नकेल कसने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने का काम करना चाहिए। संविधान में इसका प्रावधान होना चाहिए और ये प्रावधान करने की प्रक्रिया में योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़े हैं, शिवराज सिंह चौहान जी आगे बढ़े हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। इसी तरह से हमारे यहाँ पर तोशी जी है, जो जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में किस तरह से ये मतांतरण गन पॉइंट पर भी किया जाता है, जबरदस्ती भी किया जाता है, किसी को झूठ बोलकर भी भगवान को छोड़ने के लिए बताया जाता है। इस गांव का मलेरिया खत्म हो जाएगा, ये मलेरिया तुम जिन शैतानों की पूजा करते हो उसके कारण है, ये झूठ बताकर। और अगर आप हमारे भगवान की अगर पूजा करना शुरू करोगे तो मलेरिया चला जाएगा, ऐसे बोलकर उनको कन्वर्ट करने का पाप इस देश के अंदर होता है। इस प्रकार के मतांतरण के खिलाफ भी ये एक सख्त कानून आने की आवश्यकता है, जो कानून कुछ राज्यों में ऑलरेडी है और कुछ राज्यों में आना चाहिए, वो आएगा भी। मेरे साथियों, संविधान का पालन करना ये हम सब लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है। जो हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने बताया, हम लोगों को आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, अगर हमने नहीं देखा है तो नरेंद्र मोदी जी का भाषण आज हमने जरूर सुनना चाहिए। और संविधान के ऊपर उन्होंने जो हम अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम सब लोगों के लिए वो मार्गदर्शक विचार है। हमें संविधान न्याय की गारंटी देता है,
सामाजिक न्याय की गारंटी देता है, आर्थिक न्याय की गारंटी देता है, हमें पॉलिटिकल जस्टिस की गारंटी देता है, हमें लिबर्टी देता है, हमारे विचार व्यक्त करने की गारंटी देता है, लेकिन विचार व्यक्त करते समय उसकी कुछ मर्यादा भी होती है, इसकी भी याद संविधान हमें दिलाता है। और इसलिए मुझे कोई भी चित्र निकालने का अधिकार है, इसका मतलब किसी MF हुसैन को यह अधिकार नहीं बनता है कि हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें निकालकर वो नुमाइश करे। इस प्रकार से कई सारी बातें हैं कि संविधान में दी हुए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी निहित है। और अगर भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू करेगा तो फिर कानून को सख्त होने की, कागज में ही कानून पड़ा रहेगा, फिर कानून को एनफोर्स करने की, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफ वी ऑल फॉलो द ड्यूटीज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन बाय moral thoughts of our country, then definitely the law and order of our country will be improved. Not only improved, we will stay in a country where there is less crime, less poverty, and a country where development is also there. Apart from development, जिसको सुसहाय जीवन कहते हैं, आराम से, शांति से, सुख और चैन से जीने का रास्ता, आनंद से जीने का रास्ता, सबका मंगल और कल्याण करने का रास्ता, यह हमें कर्तव्य पालन से मिल सकता है। आप लोगों ने बड़े शांति से मुझे सुना, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज संविधान दिवस की मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। मेरे मित्र प्रकाश सालसिंगीकर जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे मैनेजिंग ट्रस्टी जो मेरे साथ रहे हैं वो मनोज मेनन जी दिखाई दे रहे हैं, और सालों से इस माय होम इंडिया को बढ़ाने के लिए जो काम में लगे हैं विनय पांडे जी, संतलाल यादव जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मदेव अतकरी मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे कई सारे कार्यकर्ता है। पूर्वोत्तर से जुड़ा हुआ मार्वेल सुंगो दिखाई दे रहा है, तैबोर दिखाई दे रहा है, हमारे राम नारायण हंस जी है जो गृहस्थी कार्यकर्ता है लेकिन माय होम इंडिया के लिए काम करते हैं, अजीत माली तो सपनों से अपनों तक के प्रोजेक्ट में बिजी है, जो बाल गृह में जो बच्चे रहते हैं उनको वहां से छुड़ाकर अपने माँ बाप के पास कानूनन पहुंचाने का काम करने वाला सपनों से अपनों तक का हमारा प्रमुख अजीत माली दिखाई दे रहा है। ये सभी कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं को मेरा वंदन है, उनको अभिनंदन है, और ये कार्य और भी आगे बढ़े, ये मेरी दिल से, हृदय से इच्छा है। और खास करके ये जो दर्द से हमदर्द तक का काम रविंद्र लोखंडी जी ने जिसको ओन करके चालू किया है, उस दर्द से हमदर्द के काम को जो सालों से, मतलब मुझे याद है कि जब मैं बनारस में BHU में युवाओं के सामने बोलता था तो लॉ फैकल्टी के युवा जब मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने कहा जो डॉक्टर होता है वो फ्री मेडिसिन देता है, डॉक्टर होता है वो फ्री कंसल्टेशन देता है, वैसे वकीलों ने गरीब बस्तियों में, दलित और पिछड़े बस्तियों में जाकर टेबल लगाकर बैठना और उनको बुलाना और उनको कहना कि मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा, मैं आपको फ्री लीगल एड दूंगा। ये काम कीजिए जो वकील है, मेरा हृदय से आपको निवेदन है। गरीबों की 90% समस्याएं खत्म हो जाएगी, उनको वकील के पास पैसा देकर, फीस देकर उनको अपनी समस्या सुलझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि उनको कानून का ज्ञान नहीं है। और इसलिए वकीलों ने भी फ्री लीगल एड का काम गरीबों में करना चाहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब जितना ज्यादा फ्री लीगल एड देंगे उतना ज्यादा लक्ष्मी आप पर बरसात करेगी, दूसरे स्थान पर बरसात करेगी, आपके पास बहुत सारे दुष्ट लोगों को लेकर आएगी जो आपको पैसे देकर अपनी केसेस देंगे। लेकिन आप गरीबों का कल्याण कीजिए, आप नारायण की उपासना कीजिए, लक्ष्मी आपका हमेशा साथ देगी। और इसलिए वकीलों ने जो काम किया हुआ है दर्द से हमदर्द का, जब मैंने वो कहा कि आप गरीब लड़कों को जाकर पहली बार क्राइम करने वालों का बेल कराइए,
क्योंकि वो जाते हैं दोस्त के साथ, यारी दोस्ती में जाते हैं, क्राइम करते हैं, उनको मालूम भी नहीं रहता है क्या होने वाला है, और जेल में चले जाते हैं, गरीब होते हैं, उनका जामीन देने के लिए पैसा नहीं रहता है माँ बाप के पास। तो मैंने कहा कि ऐसा उनको जमानत देने का काम करने का और उनको छुड़ाने का काम हमने करना चाहिए। तो मेरा मित्र मुझे दिखाई दे रहा है, धीरज सिंघल यहाँ पर, जिसने ये सपनों से अपने अपने दर्द से हमदर्द तक का काम, उसको धन्यवाद देने चाहिए। मैं तो सिर्फ भाषण दे दिया, मैंने सिर्फ भाषण दिया, मैंने तो एक रास्ता दिखाया, लेकिन रास्ते पर सालों तक चल के सैकड़ों युवाओं की बेल करवाकर उनको वापस रिहेबिलिटेट करने का काम धीरज सिंघल ने किया है। आज वो यहाँ पर उपस्थित है। ये दर्द से हमदर्द तक का वास्तविक फील्ड वर्कर है, और इसकी तरह से हम सभी इस काम में आगे जुड़े। मेरा आप लोगों के साथ साथ सहयोग प्यार हमेशा रहेगा। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ सब जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, तैमूर बैठा है, राजपाल जी बैठे हुए हैं, हमारे अखिलेश जी जो स्वास्थ्य सेवा सदन का काम, जन आरोग्य रक्षा का काम पूरे देश में, जैसे ये लीगल एड का काम चलता है वैसे मेडिकल एड का माय होम इंडिया काम करती है, उसके वो प्रमुख है अखिलेश यादव जी, उनको भी मैं देख रहा हूं। आपको भी बधाई है। और अगर किसी का नाम लेना रह गया होगा, मेजर आनंद टंडन जी जैसे, तो कोई नाराज न हो। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सुनील जी जब बोलना शुरू करते हैं तो वक्त जैसे रुक सा जाता है, और महिला सशक्तिकरण के लिए सुनील जी ने जो आज एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा जी का के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा जी के पास, मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता है गवर्नेंस का। आपने बेशक माई होम इंडिया को त्याग दिया, लेकिन माई होम इंडिया और ये इंडिया और माई होम दोनों अलग अलग भी आपको कभी नहीं त्यागेंगे। धन्यवाद सुनील जी। अब मैं मनोज मेनन जी से निवेदन करूंगा। मनोज मेनन जी कृपया अनम्यूट करें अपने आप को, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आई। This was an event organized by My Home India as well as Dard Se Hamdard Tak. I first of all thank Dr. Babasaheb Ambedkar, and who studied more than 60 countries' constitution to make a constitution which is the largest constitution in the world. He, along with the 8 people drafting committee and the 284 members of the Constituent Assembly, are the first people that we need to thank for this. I thank the Honorable Minister for State, Phaggan Singh Kulasthiji, who told us how the Constitution is a bonding agent among all the citizens and how it has to be followed in toto. Shri Toshi Ao talked about the special privileges that were given to Northeast states and about the relevance of Constitution in different manners. Shri Prakash Salsinger ji, I thank Prakash Salsinger ji, who explained to us how Dard Se Hamdard Tak as a organization works for the help this of the downtrodden. Sunil ji, as Abhishek ji said, is something that who puts time to solve. He explained to us how downtrodden and women empowerment happen through Constitution. He goes into his own league trying to explain to us, and we all are more than obliged to be able to hear him. I thank Shri Abhishek ji for hosting this event. I thank all of you who are a member, attended this event, and who couldn't be a part of it but heard it on YouTube as well as FB. Thanks, everyone. Thank you very much. लेकिन आज का आने में नागालैंड वाले को उधार कराई दो। थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग खत्म बंद करता हूँ। रखा हुआ है दीवार पे। Thank you.